A very pleasant morning to all the dear students of class 9. Today again I welcome you on this YouTube channel KVS Mathematics, and I hope you all are absolutely well and safe at home. So in this video I'm going to discuss the basically chapter number 11 from NCERT, which is constructions. Okay, and in the first section I'm going to explain you the three types of construction that are given in the first section, that is construction 11.1, to construct the bisector of a given angle. Okay, bisector means a line segment that divides into two equal parts. Okay, bisect means two equal parts में divide कर देना. So we will learn that how can we construct the bisector of an angle. Okay, in the construction 11.1. Then the construction 11.2 means second construction is here to construct the perpendicular bisector of a given line segment. It means that there is a line segment given to you and you have to divide it into two equal parts, which is perpendicular. Means you have to make a bisector, a line segment. The bisector will be perpendicular. It means the bisector will be making 90-degree angle with the line segment. Okay, you know very well what is perpendicular bisector. So in the construction 11.2 you will learn that how can we construct a perpendicular bisector of a line segment, and in construction 11.3 you have to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray. So you know that a ray is a part of a line जिसका एक initial point होता है and दूसरे point पर वो endless होती है, that is the ray. तो हम construct करना सीखेंगे 60 degree angle on an initial point of ray. So basically class 9, these are the three basic types of construction. तो ये basic types हैं construction के. In your next standard, in 10th standard आप इनको use करेंगे to construct other figures. Okay, to do the construction. So these are the basic construction, that how we construct the bisector of an angle, how do we construct the bisector, perpendicular bisector of a line segment, and how can we construct the 60-degree angle, 90-degree angle, 30-degree angle. Okay, 15-degree angle, even we can construct the 15-degree angle by using compass and just scale. Means without the use of protractor we will be constructing an angle of 60 degree and many other angles. So these are the three basic types of construction. We will see each one of them one by one. So first I am taking the construction 11.1, that is to construct the bisector of a given angle, and also after the construction I will be having justification. Means we have to understand the justification of the construction. Okay, तो पहले in the previous classes but usually we didn't pay much attention towards the justification, but now the justification can also be asked in the exam. Okay, you can be said that construct this and justify the construction also. Steps of construction are not much necessary, but justification can be asked in exam also. So pay attention on the justification. Now moving toward the first construction, that is I have an angle and I have to construct the bisector of the angle. Okay, means angle को two equal parts में divide करना. Let us see that. So this is the first construction. Given an angle ABC and I have to construct its bisector. So this is the angle ABC. We can construct the bisector of any angle, but for reference I have taken this as 60 degree angle. Okay, मैंने 60 degree draw किया है ताकि with measuring the protractor मैं ये verify कर सकूँ, आपको show कर सकूँ that it will be 30 degree जब मैं bisector draw कर लूँगी. ठीक है, so ये आपका angle है. bisector draw करने के लिए आपने क्या करना है, putting the point of the compass at B. ठीक है, आपने एक suitable radius का, कोई भी radius हम ले सकते हैं, तो एक सुटेबल रेडियस का ये एंगल और आर्क ड्रॉ किया. ठीक है, ये आर्क आपने ड्रॉ किया पुटिंग द पॉइंट एट बी. ओके, दिस इज द आर्क. सो आर्क आपने ड्रॉ किया, इसने एंगल को 2 पॉइंट्स पर बाइसेक्ट किया. लेट दीज पॉइंट्स एट एज डी एंड ई. ओके, सो डी ई पॉइंट पर बाइसेक्ट किया इसने टू रेज को, एंगल की ए बी एंड बी सी को. Now what you do,
taking this is DE, this DE is the मेजर ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना, ये DE मेजर है इस एंगल का। जब मुझे इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, इस मेजर का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो जो ये DE आपको स्ट्रेट लेंथ दिखाई दे रही है कंपास में, इसमें आप कंपास को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे लेंथ को कि ये जस्ट आप इसका मोर देन हाफ लेंगे कंपास में। मतलब DE जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ देखें अगर आप DE, तो इसका आप DE लेंथ का मोर देन हाफ आपने मेज़र ले लिया कंपास में। यू कैन सी इट इज़ मोर देन हाफ। इतना मेज़र कंपास में लेने के बाद, ठीक है, थोड़ा और हम ले सकते हैं, मोर देन हाफ हमें लेना है। D पॉइंट से आपने एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ DE मेज़र लेने के बाद D पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली E पॉइंट से, ओके, यू कैन सी E पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया इस तरह। दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, ये आपका पॉइंट हो गया इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट को बहुत ज़्यादा थिक मार्क नहीं करना है आपको। तो जहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है ये पॉइंट और आपका B वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, आप इनको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस यू हैव जॉइंड। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं F मार्क कर सकती हूँ, ओके, बिकॉज आई हैव टू यूज़ दिस फॉर जस्टिफिकेशन, इसलिए मैंने मार्किंग की है। तो आपका ये जो BF आपने ड्रॉ किया है, दिस इज़ बेसिकली द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ओके। सो दिस BF इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एंड वी कैन मेजर, देखिए आप, दिस इज़ योर C। जो मैंने एंगल फॉर्म किया था ये वाला A वर्टेक्स, देखिए एग्जैक्टली 60 डिग्री, ओके। नाउ जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, बिल्कुल आपने अभी देखा, आपके सामने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। सो जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है C, दिस लाइन इज एग्जैक्टली 30 डिग्री। इट मीन्स मैंने 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस पार्ट इज योर 30 डिग्री, दिस पार्ट इज योर 30 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली द एंगल, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। और मैंने बाइसेक्टर करने के लिए क्या किया था, एक सुटेबल रेडियस से DE आर्क ड्रॉ की, पॉइंट को मार्क किया D एंड E। उसके बाद DE मेज़रमेंट, DE एंगल का मेज़रमेंट था, तो मैंने इस मेज़रमेंट का हाफ से ज़्यादा मेज़रमेंट अपने कंपास में लिया। D पॉइंट से ये आर्क मार्क की, E पॉइंट से आर्क मार्क की एंड द इंटरसेक्शन इज जॉइंट। सो दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। सो नाउ वी विल सी द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। हमने प्रोटेक्टर से मेज़र करके तो देख लिया दैट वी एग्जैक्टली हैव द बाइसेक्टर, वी एग्जैक्टली हैव द 30 डिग्री एंगल। लेकिन हम इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्शन इसी टाइप से जस्टिफाइड क्यों है, मतलब ऐसा स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करने से हमें एंगल बाइसेक्टर क्यों मिलता है। सो फॉर दैट जॉइन EF एंड DF, ओके। So this is the justification. For justification you can see I have joined EF and DF. उसके बाद now I am going to use the congruency criteria. Okay. So in triangle BEF and triangle BDF. Okay, you can see BEF and BDF. I have BE is equals to BD. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने B पर पॉइंट रखकर, कंपास का पॉइंट B पर था एंड ये आर्क ड्रॉ की, तो बेसिकली यू हैव दैट दिस इज़ द रेडियाई ऑफ सेम आर्क, मतलब सेम आर्क, ये आर्क जो है इसका BE लेंथ और BD लेंथ सेम होगा, ओके, यू हैव दैट, यू नो दैट। सो BE BD सेम हो गया। देन EF और DF भी आपका सेम मेजरमेंट से दोनों आर्क ड्रॉ की थी, मतलब कि मोर देन DE लिया था मैंने, मोर देन हाफ ऑफ DE लिया था और उसी मेजरमेंट से D पॉइंट से आर्क ड्रॉ की थी, सेम मेजरमेंट से E पॉइंट से आर्क ड्रॉ की थी। तो ये EF और DF ये दोनों मेजरमेंट भी इक्वल हो गए, आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई। देन यू हैव BF इज इक्वल्स टू BF कॉमन साइड। सो साइड से आपके ट्राइंगल BEF एंड ट्राइंगल BDF बिकम कॉन्ग्रेंट बाय SSS रूल। सो इट इम्प्लाइज योर एंगल EBF, ओके, EBF बाइसेक्टर अगर मैंने किया है तो मतलब ये वाला एंगल मेरे इक्वल होना चाहिए इस वाले एंगल के। सो एंगल एंगल EBF इज इक्वल्स टू DBF
F by CPCT. Okay, so this is the justification for this construction, that when we do construction in this way, we get the two angles obviously equal, and this is justified by this construction. Now let us move toward the second construction, that is to draw the perpendicular bisector of a line segment. It means that हमें line segment का bisector करना है और वो भी perpendicular होना चाहिए, means bisector should be making 90-degree angle with the line segment. So the second construction is, given a line segment AB, we have to construct the perpendicular bisector. So this is a line segment AB, and drawing the perpendicular bisector of a line segment is much easier construction. ठीक है, बहुत सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिर्फ 2 और 3 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं. एंड वी विल सी द जस्टिफिकेशन will be again given by using the congruency of triangles. Okay, congruency rule से हम justify करेंगे construction. So this is the line segment, मुझे इसको perpendicularly bisect करना है. तो line segment AB है आपका. आप क्या करेंगे, perpendicular bisector करने के लिए you will take this, you have drawn the line segment AB. उसके बाद आप इस line segment AB का more than half measurement अपने कंपास में ले लीजिए. ओके, सो मैंने डायरेक्टली मेज़र किया यहीं से, मोर देन हाफ. यू कैन सी दिस इज़ इन माई कंपास, आई एम हैविंग मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ दिस मेज़रमेंट. ठीक है, ए बी की जो भी मेज़र है उसकी लेंथ में हाफ लेंथ से ज़्यादा का मेज़रमेंट मैंने अपने कंपास में लिया है. सो बाय टेकिंग दैट इन माई कंपास, आई हैव ड्रॉन एन आर्क above the line segment, an arc below the line segment. Okay, and with the same measurement, कंपास से मेजरमेंट को चेंज नहीं होने देना है, जो आपने मोर देन हाफ लिया है और बी से जो आर्क ड्रॉ की है उसी सेम मेजरमेंट से आपको पॉइंट ए से आर्क ड्रॉ करनी है. यू हैव ड्रॉन लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. सो दीज 2 आर्क्स आर ड्रॉन, एंड इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, एंड यू विल ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में है. सो बेसिकली दिस इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैंने इसको एल मार्क कर दिया लाइन को. ओके, सो दिस इज़ डन. बाय फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स यू हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. Okay, so marking it as P and Q. So PQ is the perpendicular bisector of AB. And also class 9 आप किसी भी लाइन सेगमेंट का perpendicular bisector ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने मेजरमेंट जो ली थी वो 8 सेंटीमीटर ली थी. यू कैन सी दैट लाइन AB लाइन जो है आपकी वो 8 सेंटीमीटर है, एंड यू कैन सी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैंने ड्रॉ किया है, देखिए कहाँ पर है, 4. ओके, सो दिस इज़ टू शो यू दैट इट इज़ एग्जैक्टली, बिल्कुल एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है. इफ़ यू विल कीप द पेंसिल शार्प, इफ़ योर कंपास इज इन गुड कंडीशन, तो आपकी मेजरमेंट, आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा. ओके, सो नाउ गिविंग द जस्टिफिकेशन फॉर दिस कंस्ट्रक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर जस्टिफाइंग द कंस्ट्रक्शन, जॉइन दिस पॉइंट टू बी. And because we will be using the congruency of triangle to justify it, so mark the point P, क्योंकि हमें ये triangle use करना है, तो point P आप इस intersection को mark कीजिए और point Q आप यहाँ पर mark कीजिए. ओके, and join PA, PB and similarly BQ and QA. So in this way you have joined these points PA, PB and AQ, BQ. Okay, so to prove the construction, to justify the construction, the reasoning is given basically in your NCERT book. This is the justification. Given on the page number 190. Okay, so you can see that when I have done this construction, ओके, जब मैंने ये कंस्ट्रक्शन की है, आई हैव एंगल, सो लेट दिस पॉइंट बी M. दिस इज द मिड पॉइंट, आई हैव मार्क्ड इट एज M. सो आई हैव triangle, we have triangle, in triangle PAQ and PBQ. So let us see,
PAQ, PBQ, PAQ और PBQ में सी PAQ, PBQ दोनों ट्राइंगल्स में you have taken this PA is equals to PB. ओके, यू नो वेरी वेल बिकॉज आपने सेम मेजरमेंट से ये दोनों आर्क ड्रॉ की थी, तो ये आपके सेम जो आर्क हैं दीज आर ऑफ सेम रेडियाई. ठीक है, दीज आर ऑफ सेम रेडियाई. सो PA is equal to PB and similarly your AQ is equals to BQ. ठीक है, ये भी क्योंकि सेम रेडियस के आर्क हैं. ओके, सेम मेजरमेंट से आपने A पॉइंट से आर्क ड्रॉ की थी, सेम मेजरमेंट से B पॉइंट से आर्क ड्रॉ की थी. तो ट्राइंगल PAQ में PBQ, दीज टू ट्राइंगल्स आई हैव टेकन. आई हैव PA इज इक्वल्स टू PB, AQ is equals to BQ and this PQ is equals to PQ common. So these two triangles become congruent by side rule. ठीक है, simple justification है, बहुत ही easy. And for seeing the statement you can see the page number 190 of the NCERT book. So these two triangles become congruent, और congruent होने की वजह से what we will have angle APQ. This angle will be equal to एंगल BPQ. ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. ठीक है, बाय CPCT. अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए CPCT से, लेकिन मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये PM आपको दिखाई दे रहा है, एक इन अ वे यू कैन सी PM जो आपको दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. मेरा टारगेट तो ये प्रूव करना है ना. इन दोनों एंगल्स को मैंने प्रूव कर दिया इक्वल, लेकिन मुझे प्रूव क्या करना है कि PM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का. इट मीन्स AM इज इक्वल्स टू MB है, ये बताना है, ये शो करना है, और ये शो करना है कि आपका जो PMA जो एंगल है वो 90 डिग्री है. सिमिलरली PMB भी 90 डिग्री एंगल है, तभी तो आप शो करेंगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ठीक है, तो पहला टारगेट मेरा था कि मैंने इन टू एंगल्स को इक्वल कर लिया बाय CPCT. नाउ व्हाट आई विल डू, टेकिंग ट्राइंगल PMA एंड ट्राइंगल PMB. ओके, और यू कैन से APM या BPM. ठीक है, इन टू ट्राइंगल्स को मैंने लिया. ओके, अगेन यूजिंग द कॉन्ग्रुएंसी रूल आई हैव AP इज इक्वल्स टू BP. ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दीज आर द आर्क ऑफ सेम रेडियस. देन यू हैव दिस एंगल APM एंगल इज इक्वल्स टू BPM. आपने अभी प्रूव किया. ठीक है, यू कैन मार्क दैट इक्वेशन 1. सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, बाय CPCT आपने प्रूव किया. देन PM इज इक्वल्स टू PM. तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड एंगल साइड. ठीक है, दो इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. नाउ व्हेन दीज टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट व्हाट यू विल हैव, AM इज इक्वल्स टू MB बाय CPCT. ठीक है, तो आपका ये बाइसेक्टर प्रूव हो गया. उसके बाद यू नो दैट जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका ये वाला एंगल, बेसिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT. अब ये दोनों एंगल इक्वल है एंड दीज आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो इनका समेशन कितना होगा, यू कैन सी हियर. ठीक है, AM इज इक्वल्स टू BM आ गया आपका, और एंगल PMA इज इक्वल्स टू PMB आ गया बाय CPCT. देन दोनों लीनियर पेयर है, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, और दोनों इक्वल हैं, तो आपका ये दोनों PMA और PMB दोनों आपस में इक्वल है. इट विल ग्रेजुअली बिकम 90 डिग्री. सो देयरफॉर PM, that is PMQ, is the perpendicular bisector of line segment AB. So this is the justification given in your book also. You can refer from here also, and I have proved this. I have shown you the justification, explained the justification. Please complete this justification, note it down from the book. Okay, this is important. This will be going to help you in exams. So this is the construction 2. Now moving toward the third construction, to construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray. Okay, so let us do the construction for angle 60 degree. So this is the third construction. Given a ray AB, construct an angle of 60 degree at initial point. So I have drawn a ray AB of any measurement. This A is the initial point and I have to draw an angle of 60 degree at this point. ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेकिंग अ सुटेबल रेडियस इन योर कंपास. कोई भी सुटेबल रेडियस आप, मिनिमम थोड़ा कम रेडियस अपने कंपास में लेंगे. एट द पॉइंट A ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस. ठीक है, which will intersect the ray AB at some point.
सो फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस, जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है कुछ पॉइंट पर एंड मार्क दिस पॉइंट एज डी. नाउ इस मेजरमेंट को चेंज नहीं होने देना है. जिस मेजरमेंट से आपने ये आर्क ड्रॉ की है उसी मेजरमेंट से पुटिंग द पॉइंट एट डी, ठीक है, पुटिंग द पॉइंट ऑफ कंपास एट डी विद द सेम मेजरमेंट, जिससे आपने ये वाली आर्क ड्रॉ की पहले वाली, उसी मेजरमेंट से सेम मेजरमेंट को चेंज नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है. सो फ्रॉम द पॉइंट ए, taking a suitable radius, you have drawn this arc, okay, and with the same radius, so this arc has intersected the AB at D, ठीक है, at some point, and we have marked it as D. So with the same radius, जिस radius से आपने ये arc draw की है उसी radius से putting the point at D, putting the point of compass at D, draw an arc like this, जो आपके previous arc को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, उसी सेम मेजरमेंट से जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है. इस इंटरसेक्शन को आप ए वर्टेक्स से, ठीक है, ए वर्टेक्स से इस इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज योर एंगल 60 डिग्री, दिस इज द एंगल 60 डिग्री, मार्क इट एज सी. सो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, बस इतना ही करना था. ओके, सो ये 60 डिग्री क्यों है? फॉर दैट जस्टिफिकेशन, सो मार्क दिस पॉइंट एज ई, ओके, एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन डी ई. डी और ई पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए. ओके, सो डी ई a straight line is drawn. Now you can see that this is 60 डिग्री. इसका जस्टिफिकेशन क्या है? You can see that we have AD is equals to AE. Okay, AD is equals to AE because it is the arc with the same radius. ठीक है, तो आपने जब ऐसे इधर आर्क ड्रॉ की थी तो ए ई ए डी दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम रेडियस होगी, ये सेम मेजरमेंट है. ओके, देन उसी सेम जिस रेडियस से आपने ये वाली आर्क ड्रॉ की थी उसी सेम रेडियस से आपने डी पॉइंट पर पुट करके ये आर्क ड्रॉ की है. ठीक है, सेम रेडियस से इसीलिए आर्क ड्रॉ की हमने. ये वाली आर्क जिस मेजरमेंट से ड्रॉ की थी उसी मेजरमेंट से डी ई वाली जो आर्क है, ये शॉर्ट आर्क, ये आपने उसी मेजरमेंट से ड्रॉ की है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ थी ए डी इज इक्वल्स टू ए ई था, वो इक्वल हो गया है किसके? डी ई के. डी ई भी सेम है क्योंकि सेम रेडियस की आर्क है. ओके, सो दीज थ्री साइड्स बिकम इक्वल. तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसीडर करूँ, इन ट्राइंगल ए डी ई, आई हैव ए इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू डी ई. तो ये कैसे ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल. और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका ये वाला एंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया. सो इन दिस वे एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. सो दिस इज द justification for this measurement. So this is all for today's video. These are the basic 3 types of construction. Watch the complete video, understand the concept of construction and its justification. In the next video we will discuss the questions from exercise 11.1 and will move further toward the construction of triangles. So watch this video completely and stay happy and stay safe at home.